Exams are not just about what's on the paper, but it's before how you feel when you sit for the preparation. So, hi everyone, I am Rubab. If you are new to my channel, let me introduce myself. I am a friend, I am a mentor, I am a guide to anyone who is my audience, and I am still in my 20s trying to figuring out my life, and currently I'm also not sure about my niche, so I'm trying different kind of videos, and today's videos is very special for all my students who are going to give their exams in November, any pre-boards or any UTs. So this video is for all my students who loves me a lot, and especially I'm making this one for you. I understand how you feel before exams. I can feel each and every student who is watching this video because I have been through the same stage in my life as well. Like, you just feel like very under pressure. You have lots of self-doubts related to any subject or your performance or your caliber, whether you'll be able to perform well or not. So there are so many things, right? Sometimes people, like students, suffer from panic attacks or from stress and anxiety. So they go through these stages as well. And this makes even the smartest mind freeze. आपको समझ ही नहीं आता हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, और इवन समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारे बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है इन आर पर्सनल लाइफ, इन आर स्कूल लाइफ, एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड अस दैट वी फील सो कंफ्यूज्ड, एंड इट एक्चुअली क्रिएट्स अ स्टेज वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड कि अब करना कैसे है, और you don't even feel like doing anything. You just want to give up, you just want to quit, या आपका पढ़ने का ही मन नहीं करता, या बुक्स उठा ली तो समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ रहा. Well, there is lot of things we can talk about this, so I will cover each part in each video. Today I am going to share 3 things or 3 major mistakes which every student generally makes before their exams. I want to talk about 3 things which you must avoid at all costs to protect your peace, to protect your mind, to protect your energy, and to do well in your exams. Number 1, it's comparing your preparation with others. So as you have just seen in my previous clip, what I have told you is कि comparing your preparation with others, yes, this is the biggest mistake, and it does not happen even after attempting your exams, या जब आपके हाथ में एक result आता है, आपके हाथ में आपका progress report होता है, then only you do not compare your results. Even before starting with the exams, let's suppose you have opened your social media or your WhatsApp, and आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड, कितने चैप्टर्स कवर हो गए, ये टॉपिक आपने कर लिया या नहीं कर लिया, एंड लेट्स सपोज दे आर शेयरिंग योर प्रोग्रेस विद यू कि उन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया, उनकी कितनी प्रिपरेशन हो गई. जस्ट इवन द सेकेंड्स यू स्टार्ट हैविंग दैट पैनिक इनसाइड यू कि इसने तो ये भी कर लिया, इसने तो इतने चैप्टर्स कवर कर लिए और मैंने तो अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, या लेट्स सपोज वट एवर यू हैव डन, यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद दैट अदर पर्सन, और उसके कंपैरिजन में आप उसको देखने लग जाते हो कि मेरा कितना हुआ है. लेट्स सपोज यू हैव कवर्ड ओनली 1 चैप्टर और सामने वाले ने 3 or 4 चैप्टर्स कवर कर लिए, सो यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग दैट, एंड हियर you should not do this. With this comparison, you are doubting yourself, you are doubting your pace, you are doubting your style of studying anything, you are doubting your journey. Not everyone, each and every student is not same. आपको पता है कि अभी आप किस लेवल पर हो. मे बी जिस पर्सन ने स्टार्ट किया था टू रीच एट 10, वो ऑलरेडी 5 पर था, राइट, बट नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, सो हाउ कैन यू कंपेयर योर प्रोग्रेस विद दैट other friend or other student? So stop doing it, literally stop doing it. I will also provide you with the solutions if I am discussing one problem ki instead of doing this you can do that. Okay, so when I have told you ki stop comparing yourself with others, then what is the solution? One thing you can do instead of comparing is ask yourself what I can revise today, what I can study today, which topic I have to cover up to score this much,
लिटरली आप अपने आप से पूछोगे कि आज आप टॉपिक कौन सा बहुत कामली प्रिपेयर कर सकते हो. मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बहुत डिफिकल्ट वाला पिकअप कर लो जो फिर बाद में आपका कॉन्फिडेंस और लोअर डाउन कर दे. नो, आप ये देखो आप कौन सा टॉपिक सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हो या आज कौन सा प्रिपेयर कर सकते हो विद दैट काम इन योर माइंड. ओके, बिकॉज ट्रस्ट मी, स्मॉल विन्स मैटर्स. तो आप एक स्मॉल स्टेप भी लोगे ना, कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लोगे या किसी एक चैप्टर के 3 टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लोगे, that's enough. Okay, so you don't have to run. Another thing you can do to avoid this stress and avoid this comparison is to take small breaks from your social media, from your WhatsApp groups. I'm not talking about कि आप deactivate करके और पूरा 1 week के लिए गायब हो जाओ, 1 month के लिए गायब हो जाओ. I am just saying to take a short break from it. जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, just keep that phone or anything जिससे भी आप connect हो रहे हो aside. Okay, for the timing जब तक आप पढ़ रहे हो. So take that short break. एंड कीप योर टू डू लिस्ट कि बेसिकली आपको कितने टॉपिक्स आज स्टडी करने हैं, आपको कोई एक चैप्टर कवर अप करना है, वट एवर इट इज़. जस्ट कीप इट वेरी रियलिस्टिक एंड बी काइंड विद योर सेल्फ. ओके, नो वन एल्स कैन बी काइंड टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी काइंड विद योर सेल्फ. तो आपको पता है आप आज कितना कवर अप कर सकते हो, तो कीप इट वेरी रियलिस्टिक एंड अ शॉर्ट टू डू लिस्ट टू कवर अप. एंड हेयर you can repeat one affirmation while preparing, and that can be कि I have to prepare in my rhythm, not in any competition. So you can repeat it and you have to keep reminding yourself that this is not a competition, this is my journey, this is my progress and I can take it slowly. Second would be ignoring your mental health and physical health. Again, this is one of the biggest mistake every student do. They think कि rest is just waste of time और क्या सोना, हम रात को बैठ के लेट पढ़ेंगे. and skipping meals is very often they do, like खाना नहीं खाएंगे टाइम से. they just depend on caffeine intake, 5 मग्स कॉफ़ी पी रहे हैं. you know, often they don't eat properly and they don't sleep well. See, it's योर जर्नी, तो यू नो बेटर कि आप रात को अच्छे से पढ़ सकते हो या आप दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो. आई नॉट आस्क कि तुम रात में जाग के मत पढ़ो या तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ो. आप अपने अकॉर्डिंग चेक करो व्हाट यू कैन डू. बट हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट यू कैन नॉट pour from an empty cup. अगर तुम अंदर से ही खाली हो, you are not giving proper nutrition, proper rest to yourself, so your mind will not work properly. You are not lazy for taking rest. You are basically recharging yourself. खुद सोचो, जब फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, अगर तुम इसे चार्ज नहीं करोगे तो फ़ोन वर्क करेगा नहीं, करेगा ना. सिमिलरली अगर तुम अपनी बॉडी को चार्ज नहीं करोगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, प्रॉपर खाना नहीं खाओगे, टाइम से मील्स नहीं लोगे, तो आप अपने आप को रिचार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रेन कर रहे हो. एंड इट विल रिजल्ट कि तुमसे पढ़ाई नहीं होगी. एंड नाउ हाउ टू डू इट, मतलब हम ये प्रॉपर रेस्ट कैसे ले सकते हैं या हम कैसे एकदम हेल्दी खाना खा सकते हैं. इट्स सी बेसिकली 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी कवर अप होनी चाहिए. दिस इज़ माई नंबर 1 सजेशन. सेकेंड वुड बी कि आप कोई भी हेल्दी स्नैक अपने पास रखो, नॉट जस्ट नमकीन एंड बिस्किट्स एंड कुरकुरे और OS और क्या खाते हो तुम लोग, चिप्स, चॉकलेट्स. सी, इसको ले लो बट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट. बट तुम एग्ज़ाम टाइम्स में ऑलरेडी इतने प्रेशर में होते हो तो तुम लोग पूरे पैकेट्स फिनिश कर देते हो. शायद जो सारे एग्जाम्स के लिए लेकर आए होते हो वो 2 दिन के अंदर ही खा लेते हो. तो बेसिकली कीप अ हेल्दी स्नैक ऑप्शन विद यू, लाइक यू कैन कीप फ्रूट्स, यू कैन कीप मखाना, बिस्किट और नमकीन और OS और जो भी तुम सब खाते हो वो सब लिमिट में रख सकते हो, बट कीप हेल्दी ऑप्शंस विद यू. एंड लेट्स सपोज कि तुम्हें उस टाइम पर हैवी मील्स खा के बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव सम लाइट मील्स. ओके, सो दिस कैन बी माई सजेशन कि थोड़े गैप पे कुछ लाइट खा लो, सो दैट कि एकदम से बहुत लेथार्जिक फील नहीं करो या खाने के बाद नींद नहीं आए. Another form of rest can be कि be in between you can take a walk or you can listen up to some good music जो आपका mood fresh कर दे, or you can take some stretches. I know students generally don't like these things कि उन्हें ऐसे walk वगैरह करना नहीं पसंद, stretch करना नहीं पसंद, affirmations बोलना नहीं पसंद. But if any of my student, trust me, लिटरली ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. ओके, वन थिंग जो मैं स्पेसिफिकली इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे वो रेस्ट लेने के लिए हम इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं कि जब हमारे को लेट्स सपोज कि तुमने आधे घंटे पढ़ाई करी और 10 मिनट्स के लिए आपको रेस्ट लेना था, तो तुम इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करने चले गए, इंस्टा पे रील्स चेक करने चले गए. डोंट डू दैट. दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रेस्ट, क्योंकि फिर आप 1 आवर, हाफ एन आवर ऐसे ही डूम स्क्रॉलिंग में निकाल दोगे एंड इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू. उल्टा आपको बाद में स्ट्रेस होगा, बाद में ऐसा गिल्टी फील होगा कि मैं क्यों व्हाट्सएप चेक करने चली गई, मैं क्यों इंस्टाग्राम चेक करने चली गई और मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इंस्टाग्राम रेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्चुअल रेस्ट, जिससे आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए एंड आप वापस से अपनी वो एनर्जी गेन करके एंड क्विकली यू विल स्टार्ट विद योर स्टडीज. ओके, थर्ड वन वुड बी
letting fear control you. You know why I am sharing this one? Because I have seen this among my students. They don't fail because they don't study enough, but they fail because fear controls them. And I remember one of my very brilliant student, और वो business के ही प्री बोर्ड में लिटरली उसकी शीट हाफ ब्लैंक थी या उसने कुछ लिखा नहीं था. लेटर ऑन जब मैंने पूछा कि व्हाट यू हैव डन इन योर एग्जाम, like seriously, she was one of my brilliant student. I'll not take the name. Literally she told me later on कि while doing the exam उसको एंग्जाइटी होने लगी और उस एंग्जाइटी के चक्कर में she ended up writing nothing. या जो उसने अटेम्प्ट भी किया वो गलत हो गया. उसको आता था, उसको बाद में आंसर्स पता है, बट उस टाइम पर इतना ज़्यादा उसको एंग्जाइटी हुई कि वो नहीं लिख पाई. यू नो, तो फियर ने उसको टेक ओवर कर लिया. सो बेसिकली यहाँ पे फियर क्या करता है, और ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे माइंड में जो चल रहे होते हैं कि व्हाट इफ़ आई डिडंट स्कोर वेल, व्हाट इफ़ आई फॉरगॉट, कि मैं अभी तो पढ़ रही हूँ, क्या पता मैं बाद में भूल जाऊँ, या एम आई गोइंग टू डिसअपॉइंट एनीवन, मतलब योर टीचर, योर फ्रेंड्स, या पिछली बार आपके टीचर ने आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख ली थी कि इतना तो तुम स्कोर करोगी, या तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, तुम कैसे इतने मार्क्स लेकर आ सकती हो. यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस रेज हो जाती हैं. यू नो, इट कैन बी योर पेरेंट्स कि लास्ट टाइम तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू विल परफॉर्म वेल. तो आपके मन में वो बहुत सारी चीज़ों के डर हैं कि व्हाट इफ मैं इसको डिसअपॉइंट कर दूँ, व्हाट इफ ये हो जाएगा. इट कैन बी एनीथिंग, है ना. डोंट लेट इट टेक ओवर यू. हियर व्हाट यू कैन डू, ब्रीथ. Just relax yourself and try to remind yourself कि आज से पहले भी तुमने हर एक एग्जाम सर्वाइव किया है. So don't let that fear control you and remind yourself that you have come so far and it's not easy. You are doing your best, right? So what you can do to avoid this fear is, number one, talk kindly with yourself. Talk positively with yourself and you can repeat affirmations. जैसे मैंने अभी सेकंड वाले पॉइंट में भी सजेशन दिया था. Here you can start. मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे fear आ रहा है, वो anxiety स्टार्ट हो रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, so relax. Just take 3 deep breaths and then repeat that I trust my journey, I trust my preparation, I am doing my best. You can say in present tense that I am doing my best. This is a second suggestion कि आपको अपने आप को ये भी रिमाइंड कराना पड़ेगा कि you are not looking for a perfection but you are looking for efforts and calm. Okay, so अभी right now आप क्या कर सकते हो, उस पर एफर्ट्स करो, उस पर फोकस करो एंड जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे आपके 90 अबव मार्क्स आए या वट एवर यू आर एमिंग. आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि आपने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक्स की थी. यू डोंट हैव टू रिपीट देम. उनको आप गो थ्रू करो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आपने ऑलरेडी पहले जिनमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया. ओके, एंड जस्ट बी काइंड विद योर सेल्फ. डोंट फोर्स एनीथिंग, अदरवाइज फिर प्रेशर क्रिएट होगा. यू नो, एग्जाम्स विल कम, एग्जाम्स विल गो, बट your mental health, your physical health, your self-trust will stay. So please don't lose yourself in the process of proving yourself कि आपको मार्क्स लेकर आने हैं, आपको किसी को प्रूव करना है योर वर्थ और यू कैन स्कोर दिस मच, या आपका एक सेल्फ इमेज सेट है, या दूसरों की पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो कि वो मुझसे एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करता होगा तो मुझे करना है. इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ, डोंट lose your calm. You have to prepare for your exams with calm, with kindness and with self-love, not with chaos and anxiety, under pressure, with self-doubts and so on. So relax everyone, take a deep breath and you have got this always, and I am with you. If you have any problem and if you are facing anything, just let me know in the comments. I will try my best to help you. Okay, and if you have liked this video, if it is relatable, if you have found it this much useful, please let me know in the comments. Please share this video with other students so that it will be helpful for them. Share it with your friends and with your coaching friends, anyone who is just going to give their exams. Please subscribe to my channel and like this video. Thank you for watching.